براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی ٹی وی پر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ خدا کی باتیں بر وقت رہنمائی ہیں اور اس رہنمائی سے ہمارے لیے تاریکیاں دور ہوتی ہیں، اندھیرے دور ہوتے ہیں اور روشنی ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، اس وقت جس صورتحال سے دنیا گزر رہی ہے، بہت اہم موضوع، قائدین کی پہچان اسلام میں اور مسیحیت میں کیسے کریں۔ جو قائدین خدا کی طرف سے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، کس طرح سے جانیں گے؟ اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہمان بھی ہوں گے اور آپ سب کو بھی پروگرام کے شروع میں ہی دعوت دیتے ہیں۔ آپ بھی اسکائپ کے ذریعہ سے، ٹیلی فون کے ذریعہ سے، SMS کے ذریعہ سے شریک ہو سکتے ہیں اور جلد ہی ہم آپ کو یہ سہولت بھی دیں گے کہ آپ واٹس ایپ یا ویبر کے ذریعہ سے بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں گے۔ جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو ایک نبی جس کا نام یرمیہ، اس کی کتاب اور اس کی خدمت بہت اہم ہے اس موضوع کے تعلق سے، چونکہ جب وہ تقریباً 7ویں صدی قبل از مسیح میں خدمت کا آغاز کرتا ہے تو اس کا جو بلاوا ہے وہ بادشاہوں، حکمرانوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے کلام خدا میں سے وہ جب بات کرتا ہے تو وہ آگاہی بھی ہے، وہ تنبیہ بھی ہے، وہ تربیت کی راہ پر آنے کی ایک صدا، ایک پکار بھی ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو یہ علم الہی کے ایسے خزانے ہیں جو تہ در تہ چھپے ہوئے ہیں، اور جو ہی ایک تہ کے بعد دوسری تہ کھلتی ہے، باتیں ہم پر عیاں ہوتی ہیں، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم پہچان کیسے کریں، اپنا تجزیہ کیسے کریں، اپنے چوگرد کے ماحول میں امتیاز کیسے کریں۔ یہ کلام ہمیں اس قابل کرتا ہے، ایسی حکمت اور دانائی تک لے آتا ہے جہاں ابہام ختم ہوتے ہیں، بے وقوفیاں جاتی رہتی ہیں، نادانیاں جاتی رہتی ہیں، اور ہم دانائی اور شعور کی اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو خدا کے دل کی خواہش ہے۔ پہلی آیت آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ یرمیہ کی کتاب ہے اور اس کا 6 باب اور 10ویں آیت ہے، اور یہ آج اہل مسیحت، اہل اسلام اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے؟ دیکھ، ان کے کان نامختون ہیں، پاک نہیں ہیں، اور وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے اور وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے؟ دیکھ، ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے۔ دیکھ، خداوند کا کلام ان کے لیے حقارت کا باعث ہے، وہ اس سے خوش نہیں ہوتے۔ یہ موضوع جب باتیں کھلیں گی تو بہت سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، وہ حقارت سے بھر جائیں گے،
اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ حقارت سے بھرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، اگر وہ اس کلام کو قبول نہیں کرتے تو نئی بات نہیں، اور اسی باب میں وہ لوگ جو حقارت سے بھر جائیں گے، دشمنی سے بھر جائیں گے، ریاکاری سے بھر جائیں گے، گو پہلے بھی کچھ بھرے ہوئے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو بھریں گے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا انجام بھی اسی باب میں پڑھ لیجئے گا کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، چرچ میں ہیں، گردوارے میں ہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، سکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، خدا کے کلام کی آواز کے شنوا ہو جائیے۔ اگر آپ نے خدا کی برکات کا تجربہ کرنا ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہمارے کان سننے کے لیے تیار ہوں، ہمارے دل قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ہی ہم بابرکت ہو سکتے ہیں۔ خدا کے وعدوں کی تکمیل مستقبل کا خواب نہیں ہوگا، بلکہ حال میں ہم اس کی تعبیر دیکھیں گے، چونکہ خدا کے وعدے سچے ہیں، برحق ہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے وعدے پورے نہ ہوں۔ تو قائدین کے تعلق سے بات کریں گے، چند آیات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خدا کا کلام قائدین کو کیا کہتا ہے، کیا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، وہ ہیں کون۔ آج کی جو تصویر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں، بائبل قائدین کو کیا قرار دیتی ہے، پیدائش کی کتاب ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں، سلائیڈ دکھا دیجئے۔ اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے خادم ابراہیم کی خاطر تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ خادم سے مراد نوکر، خدمت کرنے والا، اور اس میں خدمت کا جو تعلق ہے وہ خدا اور انسان دونوں کی خدمت اس میں شامل ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، ابراہیم خدا کے بندے کا ذکر ہم نے دیکھا ہے۔ دیکھیں پھر ایک اور جو قائد ہے خدا کی طرف سے، اور یہ خروج کی کتاب ہے، اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند خدا سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ موسیٰ خدا کا خادم۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھتے ہیں، سیموئیل کی کتاب ہے۔ تب فلسطی امیروں نے کہا کہ ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اکیس نے فلسطی امیروں سے کہا کہ یہ اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کا خادم داؤد نہیں، جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں میرے ساتھ ہے، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی۔ ساؤل کا خادم داؤد۔ تین بڑے نام ہم نے دیکھے، اور ان کو نوکر، خادم کہا گیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ عبرانی میں پڑھ لیجئے، یونانی میں پڑھ لیجئے، ارامی میں پڑھ لیجئے، عربی میں پڑھ لیجئے، اردو میں پڑھ لیجئے، انگلش میں پڑھ لیجئے، اور اگر آپ کہیں یہ تفسیر درست نہیں ہے تو بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ہر ہفتے لائیو ہوتے ہیں، کال کیجئے۔ اسی تعلق سے کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں نے انہیں نہیں بھیجا۔ وہ لیڈرز، وہ قائدین جو اس منصب پر آ جاتے ہیں کہ ہم قائد ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں بھیجا، تو پہچان کیسے کریں؟ دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب میں سے، خداوند فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، غور سے سنیے گا، جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور جھوٹی باتوں سے لافزنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے، لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا، اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہرگز فائدہ نہ ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے وہ لوگ وعدے کرتے ہیں کہ فائدہ ہوگا،
आपके लिए बरकत होगी, आप ईमान रखें। लेकिन यहां पर लिखा है वाज़ेह, पहचान कैसे करेंगे? कुछ फायदा नहीं, कोई बेहतरी नहीं, कोई तरक्की नहीं। शायद उनकी अपनी तो तरक्की होती है। मुझे किसी ने पूछा कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान में जो पादरी साहबान हैं या दीगर मजहबी रहनुमा हैं वो तो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, कलीसिया की हालत वैसी ही है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भी जो अमीर हो रहे हैं आप उनसे पूछें, आप खुद तजज़िया करें, आप खुद ढूंढें वजूहात क्या हैं। फायदा लोगों को, कलीसिया को, अवाम को कुछ फायदा ना होगा, वो किसी को फायदा पहुंचने भी नहीं देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए चूंकि खुदा ने उनको नहीं भेजा। एक और आयत देखते हैं। तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से कहा, ए हनन्याह अब सुन, खुदावंद ने तुझे नहीं भेजा लेकिन तू उन लोगों को झूठी उम्मीद दिलाता है। सच्ची उम्मीद भी है और झूठी उम्मीद भी है उम्मीद। वो कहेंगे जनाब बस उम्मीद है ये हो जाएगा, बेहतरी आएगी, लेकिन चूंकि खुदावंद की तरफ से वो कलाम नहीं होता, अगर खुदावंद कहेगा तो वो पूरा होगा, हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान ये है कि वो झूठी उम्मीदें दिलाते हैं। खुदावंद कहता है मैंने उनको नहीं भेजा। और इस वक्त दुनिया की हालत देख लीजिए, हर तरफ उम्मीद दिलाई जा रही है, लेकिन क्या वो उम्मीद भर आती है? अगली आयत देखते हैं। और उन्होंने बातिल और शगुन और झूठा शगुन देखा जो कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, अगरचे खुदावंद ने उनको नहीं भेजा, और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। खुदावंद फरमाता है मैंने उनको नहीं भेजा। तफसीलन हम बात करेंगे। अभी एक क्लिप देखते हैं कि उस क्लिप में ये पाकिस्तान के चैनल्स पर इस वक्त तमाम बातें आम हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, सीखने के ताल्लुक से है। तो आइए देखें कुछ झलक रहनुमाई की, रहनुमाओं की, कायदीन की। क्लिप देखते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। और उसकी बेसिक वजह ये थी कि यहाँ इदारे की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनकी जो तैनाती है उसका कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, वो सियासी मकासद के तहत है। जो बंदा मेरा एक जुमला समाप्त फरमा लें, जो बंदा 10 दिन हुकूमत की काफिल ऐसी करे वो मेंबर आ जाता है। अभी अशरफी साहब बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े तड़ल्ले के साथ कह रहे हैं कि मैंने एपीएस में ये किया, मैंने फलां मामले पे गर्दी के खिलाफ किया। मैं आपके प्रोग्राम की वसात से अर्ज करना चाहता हूँ, इन्हें कहें कि मलक इसहाक के मामले में और लश्कर जंगवी के खिलाफ आप यहाँ पर जरा मजम्मती जुमले कहें। जिस वक्त लश्कर जंगवी का सरबराह मलक इसहाक, उसको जेल से रिहा किया गया, उसके गले में फूलों का हार डाल दिया। अशरफी साहब आप गए थे, पूरे हजारों लाखों लोगों का कातिल, आप उसको पूरे प्रोटोकॉल में लेके आए थे। ये क्या बगल में छुरी और मुंह में राम राम? एक तरफ आप दहशत गर्दों के इतने बड़े अपना प्रोटोकॉल देते हैं और दूसरी तरफ आप हुकूमत और अफवाज के नारे लगाते हैं। ये दो नंबरियां ना दिखाएं कौम को। मुफ्ती साहब ताहिर रशीद साहब को मौका दें, आपने बहुत इल्जाम लगाए। जी अशरफी मैं इल्जामात नहीं है भाई, ये हकीकत है। जी अशरफी साहब, पहली बात ये है कि कातिल मलक इसहाक भी है और कातिल एक और भी है जिसको कत्ल के लिए फतवे देके भेजा। मलक इसहाक के गले में मैंने हाथ डाला हो, मैं मसरूद साहब आपको नहीं पूरी कौम सुन रही है, मैं चैलेंज करता हूं अगर मलक इसहाक के गले में मैंने हाथ डाला हो मुझे जनाब फौजी अदालत में ट्रायल कर दे। लेकिन अगर जाके मुमताज कादरी से पूछे सलमान तासीर के कत्ल के लिए किसने उसे उभारा, अगर वो कहे हनीफ कुरैशी ने उभारा है तो फिर इसे भी फौजी अदालत में ले जाए। इनमें तो इतनी जरूरत नहीं है। उस गरीब ने फंसा दिया मुमताज कादरी को, उसको फंसा दिया। अगर जरूरत थी तो तुम अदालत में जाके कहते कि हमने फतवा दिया को कत्ल करो। इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन मजहब के नाम पे हमने देखा कि पाकिस्तान में हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाया गया, उल्लू बनाया गया। तो क्या अभी तक हम इसी तरह इसी पाकिस्तान में अभी भी बेवकूफ बन रहे हैं इसी तरह से? गुजारिश ये है कि एक शेर बड़ा काम का है, आपने जो सवाल उठाया है कि अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब कभी बनामे वतन।
یہ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایکسپلائٹیشن کے لیے ایک بدنیتوں اور بدذاتوں پہ مشتمل اقلیت جو ہے وہ اکثریت کو کبھی وطن کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتی ہے اور بیچتی ہے اور مرواتی ہے، کبھی ملک کے نام پہ۔ اچھا، تین چیزیں ہیں جن پہ کسی کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بتائے، چونکہ وہ انسانی جبلت میں شامل ہیں۔ ماں سے محبت، ملک سے محبت اور اپنے مذہب سے محبت، اپنے عقیدے سے۔ میں نام لیے بغیر عرض کروں گا کہ چند مذاہب ایسے ہیں کہ بندہ پریشان سا ہو جاتا ہے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ یہ کیسے بلیو کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی کسی بنائی ہوئی چیز کا، وہ مٹی کی ہے، پتھر کی ہے، کسی دھات کی ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کرتے ہیں اور دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں سے، ملک سے اور مذہب سے محبت کا کوئی نہ لے، یہ انسان کے خون میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس میں انسانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اگر وہ تھوڑے سے بھی مہذب ہوں، ان کو تعلیم ہو، عقل ہو، شعور ہو۔ لینن کا ایک جملہ ہے، وہ سنیں ذرا غور سے آپ، بلکہ آپ کیا، آپ نے تو سنا ہوا ہوگا، آپ کے ویورز کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا تھا پریچر آف ایوری ریلیجن از اے روگ۔ بھائی جو بندہ دماغ رکھتا ہے، آنکھ رکھتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سچ جھوٹ کا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے بات بالکل دیر سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس پہ امپوز کر رہے ہیں، ان کے دروازے توڑ رہے ہیں یا دھمکیوں کے ذریعے وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، دس از نان سینس۔ تو یہ انسان جو تھوڑا سا بھی جس میں میچورٹی ہو، جس کا تھوڑا سا بھی ویژن کو گولی مارے آپ، جس کی بیسک ایجوکیشن ہو، اس کو پتا ہے یہ میرا ملک ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا مذہب ہے، لیکن اس کو اتنا ہوش ہونا چاہیے، جو ایکسپلائٹ ہوتے ہیں، مرتے ہیں یا مارتے ہیں، وہ خود ظالم ہیں اور وہ خود قابل نفرت لوگ ہیں، چونکہ یہ کامن سینس کی بات ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میری محبتیں ہیں، بالکل، لیکن ماں، ملک اور مذہب، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کا نام لے کے مجھے بیچ جائے یا میری نسلوں کو بیچ جائے، بالکل جو دل کرے اور گولی مار دے۔ بہت بہت شکریہ۔ مذہب یا ملک کا نام لے کر مجھے بیچ جائے یا میری نسلوں کو بیچ جائے، قائدین کی پہچان کی بات کر رہے ہیں، بہت ہی سنجیدہ اور نازک موضوع ہے، لیکن کسی کو تو بات کرنا ہوگی، کسی کو تو بولنا ہوگا۔ چونکہ ہم بات کریں گے قائدین، مسیحت میں اور اسلام میں، مسیحت کی تعلیم پر آج بات ہوگی، لیکن چونکہ ہم نے اسلام کی بات بھی کریں گے، جو اسلامی کتب میں تعلیمی باتیں موجود ہیں اس تعلق سے، تو چونکہ اسلام میں جب اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے قرآن اور سنت چھوڑ رہا ہوں جو رہنما ہوں گے، تو اس تعلق سے دو احادیث آپ تمام احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور ضرور ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو کتب ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ تو اس میں پہلی جو کتاب میں آپ تمام احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ کتاب ہے زاد راہ، اور مولانا جلیل احسن ندوی اس کے مصنف ہیں، اور یہ احادیث کی کتاب ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو حدیث ہے وہ کیا کہتی ہے۔ رہنمائی کے تعلق سے چونکہ قرآن اور سنت ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہے طلب دنیا کے لیے علم دین کا حصول۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو حدیث ہے، یہاں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر وہ فتنہ مسلط ہوگا جس میں تمہارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور بوڑھے اور اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچیں گے، اور فتنہ یعنی گمراہی کو سنت یعنی بھلائی سمجھا جانے لگے گا۔ اگر کوئی شخص اس فتنے کو ہٹانے کے لیے اٹھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ناپسندیدہ اور برا کام کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، ایسی حالت امت پر کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جب تمہارے اندر ایماندار اور قابل اعتماد لوگ کم ہو جائیں گے اور اقتدار کی حوث رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔
دین کے واقعی علماء کم ہو جائیں گے اور دین کے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے. دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا. نیک کام کریں گے لیکن اس سے مقصود دنیا کا حصول ہوگا. تو یہاں پر لکھا ہے یہ فتنہ آ جائے گا کہ گمراہی، فتنہ یعنی گمراہی کو سنت. تو بہت ضروری ہے اور اس کی تفسیر جو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. آغاز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنت کو یہ لکھا ہے گمراہی سمجھا جائے گا. تو کرنے والے کون ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے وہ لوگ. اب لوگوں کی پہچان ضروری ہے اس حدیث کی روشنی میں. کس طرح سے سنت میں امتیاز کریں گے، کس طرح سے لوگوں میں امتیاز کریں گے. تو یہ تو ہو گئی بات سنت کی. اب دوسری کتاب ہے منتخب احادیث، ادارہ اسلامیات کراچی پاکستان سے ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ذریعہ ہے بیان فرمایا گیا قرآن، اس کے بارے میں میں یہاں سے پڑھوں گا. یہ صفحہ نمبر 22 ہے. کتاب پھر آپ کو بتا دو، منتخب احادیث صفحہ نمبر 22، اور یہاں پر قرآن کی بات کی جا رہی ہے. تو رہنمائی کے لیے اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، آپ نے 2 ذرائع چھوڑے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر میں پڑھتا ہوں، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے. ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. اب یہ پھر کتاب بتا رہا ہوں، منتخب احادیث ہیں. تو 2 ذرائع قرآن اور احادیث، اور دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس پر بات کریں گے ہم دوسرے حصے میں. آج چونکہ ہم بات کریں گے اس مسیحت میں جو تصور ہے قائدین کا، وہ تو میرے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب پاسٹر پرویز صاحب. پاسٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت خوشی ہو رہی ہے یہ فضل ربی پروگرام سن کر. جی بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں قائدین اسلام میں اور مسیحت میں. تو آپ یہ فرمائیے کہ قائدین کی تعریف کیا ہے؟ علم الہی قائدین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا تعریف ہے؟ پھر میں دیگر سوالات بھی آپ سے پوچھوں گا. ڈاکٹر دانیال، در حقیقت قائد کی جو تعریف ہمیں کلام مقدس کی روح سے ملتی ہے کہ ایک قائد ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کی سوچوں کو سچائی کی طرف لگاتا ہے اور انہیں محبت، معافی اور ابدی زندگی کی راہ دکھاتا ہے. وہ ان پر اپنی سوچ کے اثر و رسوخ کو اور اس قائدانہ صلاحیتوں کے وسیلہ سے ایسی چیزیں ان کے دل میں، ان کی سوچ میں پرو دیتا ہے تاکہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک مناسب افیکٹو قائد بن سکے، قربانی دے سکے، مشن کی تکمیل کے لیے جو کچھ بھی مناسب ہو وہ اس مالک کی رضا کے تابع ہو کر سکے. بہت شکریہ سر، آپ نے یہ تعریف بیان فرمائی کہ قائدین کا کام رہنمائی کرنا ہے، اور پھر آپ نے کہا سچائی کی راہ پر لوگوں کو لے کر آنا، راست بازی کی راہ پر لوگوں کو لے کر آنا. لیکن جناب اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے چوگرد اور میرے چوگرد اور پوری دنیا میں، وہاں پر تو جھوٹ پروان چڑھ رہا ہے، ریاکاری کا دورہ ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. تو یہ رہنما تو موجود ہیں، پھر یہ رہنمائی کہاں ہے؟ سر اس پر روشنی ڈالیے پھر تھوڑی سی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ہی ڈاکٹر دانیال سنا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے یرمیہ نبی خدا کا سچا نبی ہے اور اسی زمانہ میں جھوٹے بھی.
और कलाम मुकद्दस बताता है कि इस अखीर जमाना में झूठे नबी और झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे, जो आज हम अपनी दुनिया में देखते हैं। लेकिन सवाल आपका यह है, सच्चाई को जानना बड़ा जरूरी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जॉन द बैप्टिस्ट, जब उन्होंने लोगों को बताया सच्चाई के लिए, और कुछ लोग आ तो गए लेकिन उनके अंदर तब्दीली नहीं थी, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे और उन्होंने कहा, आए सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। जिसका मतलब यह था कि सच्चाई को कबूल करना, सच्चाई पर चलना जो है वो एक कायद की पहचान है, और उसके पैरोकारों को बिल्कुल उसकी रोशनी में पैरवी करना होगा। अगर वो नहीं करते तो वो फिर काउंटरफीट या नकली किस्म की क़ियादत होगी और नकली किस्म के पैरोकार होंगे। बात की है सच्चाई की और फिर झूठे रहनुमाओं की और खुदाई रहनुमाओं की, तो मोहतरम आप मुझे ये भी बताइए थोड़ा सा कि क्या इस वक्त जो कायदीन है बर सगीर पाक व हिंद में, आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं उनके बारे में? इस वक्त कलीसियाई सियासत, प्रॉपर्टीज़ को बेचना, अपने अपने किंगडम की तामीर करना, उसकी फ़रोग और तरक्की के लिए दूसरों की टांगें भी खींचना, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करना, ग्रुप्स बने हुए हैं एक दूसरे के साथ, सख्त बातें हैं, लेकिन यह सच्चाई है सर। तो इस सच्चाई के बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर दानियाल, सच तो कड़वा लगता है लोगों को, लेकिन सच्चाई के अलंबरदारों को सच बोलने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मैं बात कर रहा था। उसने उस वक्त के बादशाह के सामने कह दिया था कि तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं, अगरचे उसके लिए सर कटवाना पड़ा। और आज मैं जॉन द बैप्टिस्ट को सलाम करते हुए आज ये कहूंगा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क और हमारी कौम को ऐसे कायद मिल गए हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, जिनका बुलावा आसमानी नहीं बल्कि वो बनावटी हैं। और आज बहुत सारे जैसे बनावटी पीर हैं, फकीर हैं, इसी तरह से बहुत सारे बनावटी बिशप साहबान जो सिर्फ टाइटल लिए हुए हैं, जो सिर्फ अपनी जात और अपने खानदान को पालने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अफसोस कि ये लोग कौम के लिए ना बदनामी का बायस बनते और ना ये मसीहत पर धब्बा होते। और आज मैं बड़ी दलेरी से ये कहूंगा, मेरी दुआ ये है कि उनके ज़मीर जाग उठे और वो जाने कि उन्होंने जरिया मुआश जिस खिदमत को बनाया है वो बुलावे पे है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बात की कि बहुत से नाम नहाद लोग इन कलीसियाई ऑफिसेज में हैं, तो लोग तो उनकी पैरवी भी कर रहे हैं, फिर लोग उनको पैसे भी देते हैं, उनके साथ खड़े भी हैं, उनके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे पैरवी जो करने वाले लोग हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है? बाइबल क्या कहती है उनके लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज ये भी बदकिस्मती है कि कुछ लोग अंधों के पीछे चलकर, और कलाम में लिखा है कि अगर अंधे को अंधा राह दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। सर यहाँ पर मैं बात करूंगा, वो गड्ढे में गिरने वाली बात आप कर रहे हैं, उनके पास करोड़ों रुपया है, वो बड़े कामयाब हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, वो अंधे कैसे हो गए सर? ये तो थोड़ा सा इस बात को खोलिए। फिर लोग कहते हैं जी इसको तो खुदा ने बड़ी बरकत दे रखी है, तो क्या कहेंगे सर? इस बात पर रोशनी डालिए फिर थोड़ी सी। जी डॉक्टर दानियाल, यही अलमिया है कि आज लोगों ने बड़ी सक्सेस को सोचा है कि ये बड़ी ब्लेसिंग है। आज बहुत सारे हमारे यहां टीवी प्रीचर भी हैं जो प्रॉस्पेरिटी की तालीम देते हुए जो कहते हैं कि अगर ये सारा कुछ, आज हम देखते हैं दुनिया के बहुत सारे बदतरीन लोग जो हैं वो भी मालदार बन गए, लूट कर, डाके डालकर,
कत्ल गारत करके तावन लेकर, शायद उनके पास बड़ा सोना और उनके पास बहुत लाखों हो सकते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि आज अंधे को अंधा राह दिखा रहा है। इसलिए मसीह खुदावंद ने कहा था, ये खुद तो गड़े की तरफ, ये जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जहन्नम का वारिस बना रहे हैं। तो लोग क्या करें फिर सर? वो तो कहते हैं जी बरकत है, वो बड़े बड़े नारे मैंने सुने हैं, वो कहते हैं जनाब जैसे मुझे खुदा ने बरकत दे दी है, आप मेरी मिनिस्ट्री में इन्वेस्ट करें, खुदा आपको भी बरकत दे देगा। तो वो बात तो बाइबल की कर रहे हैं, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो कैसे लोग समझे सारी इस बात को? जी डॉक्टर दानियाल, आपने सही कहा, लेकिन आज वाकया में ही जो आपने कहा अलमिया यही है कि जो पैरोकार हैं वो भी ऐसे ही इन्फ्लुएंस में, उन्हें भी झूठी तसल्लियां, जैसे आपने कहा हननिया के, वो झूठी तसल्ली दे रहा था कि बाइबल आकर तुम्हें लेके नहीं जाएगा। लेकिन आज बहुत सारी जो झूठी तसल्लियों में है, एक दिन इसका अंजाम उन्हें पता लगेगा कि ये झूठी तसल्लियां देने वाले, ये झूठी बरकतें देने वाले जो हैं, झूठी शिफाएं देने वाले जो हैं, ये असल में वो सच्चाई। इसलिए मैं एक वर्स कहना चाहूंगा कलाम मुकद्दस में, जनाब हजूरुल मसीह ने कहा, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज वो लोग जो इस झूठ के बंधन में गिरफ्तार हैं, उन्हें जरूरत है हकीकी और सच्चे लोगों की, और जो बड़े थोड़े हैं, लेकिन जरूर है कि सच्चाई का नरसिंगा फूंका जाए ताकि वो देख सकें कि हक और बातिल क्या है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, खुद नमाई क्या है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा, बताइए, बहुत से लोग जो सच्चाई की निशानदही करते हैं, जो रियाकारी को एक्सपोज करते हैं, जो बाइबल की जो दुरुस्त तालीम है उसकी बात करते हैं, सर उनके जो पैरवी है वो तो कम लोग करते हैं, और बेचारे ग्रुपों का जो है उनकी जुल्म ज़्यादतियों का निशाना भी बनते हैं, और अकेले ही बेचारे रहते हैं और माली मुश्किलात में भी हैं। उनकी ढारस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? प्रेशर है उन पर पादरी साहब, उन पर प्रेशर है कि वो उनकी मानद बन जाए, दूसरों की मानद, जो दुरुस्त सम्मत में चलने वाले लोग हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं हमेशा आपकी दलेरी के लिए बड़ा खुश होता हूं, लेकिन आज आपने ऐसी दुखती हुई रग पर हाथ रखा है। बहुत सारे लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये बात कही जाए और सच्चाई के लिए लोग खड़े हो जाएं, और उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह ये कहना है कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं, तुझे ये सब कुछ जो तू कर रहा है वो दुरुस्त नहीं, शरीयत के मुताबिक नहीं, अगरचे उसका सर कलम हो गया। आज ये इसी तरह से है। अगर कोई सलेमान तासीर की तरह ये कह दे कि हमें कानून के मुताबिक ये करना है, उसे भी अपने खून का अतिया पेश करना पड़ा, चाहे शहबाज भट्टी हो। आपके हाँ जो भी सच बोलेगा, आज बहुत सारे जजेस क्यों नहीं फैसला लेते दानियाल साहब? इसलिए उन्हें डर लगता है, अगर वो सच्चाई का साथ देंगे, झूठे मुकदमे जिन पर बनाए गए हैं उन पर तलवार है, लेकिन किसी को तो कुर्बानी पेश करनी होगी। और इसलिए मैं कहूंगा, सच बोलने वालों को सच और हक की खातिर तैयार होना होगा, चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई हो। मुझे भी और दलेरी करनी है ताकि मैं हक को और सच को कह सकूं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही मुदल्लल अंदाज से इन बातों को पहुंचाया है, और मैं इसके साथ सिर्फ ये गुस्ताखी करूंगा शामिल करने की, अगर आप हक की खातिर, रास्तबाजी की खातिर, सच की खातिर, सदाकत की खातिर दुख उठा रहे हैं तो घबराइए नहीं। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो वक्त पर काटेंगे, और अगर दुश्मन आपको सलीब पर भी चढ़ा दे, तारीकी की कुव्वतें जश्न मनाएं, वो कहें कि हमने इसको गिरा दिया है, वो कहें हमने इसका खात्मा कर दिया है, लेकिन वो नहीं जानते पहला दिन कब्र में गुजर गया, दूसरा दिन कब्र में गुजर गया, लेकिन सच्चाई के अलमबरदारों को कब्रें
अपने अंदर न रख सकी। यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर जब कटाया गया तो लिखा है खुदा की बादशाहत में वो सबसे बड़े रुतबे पर होगा। इसलिए ऐ मेरे बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया में आप जहां पर हैं, जाती तौर पर मैंने बहुत मुश्किल हालात का सामना किया सच बोलने की खातिर, और करते रहेंगे। घबराना क्यों है? ये जिंदगी तो थोड़े दिनों की है, उसके बाद अबदी जिंदगी है। इसलिए पाकिस्तान में, इंडिया में जो खादिमुल दीन सच्चाई पर खड़े हैं, हक बात कहते हैं, कभी भी ना डरिए, ना झुकिए, चूंकि यीशु मसीह नासरी आपके साथ है। एक कॉलर हमारे साथ है, बात करते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, आपको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। ऑन एयर हैं, बात कीजिए। यीशु में आपकी सलामती हो पास साहब। सलाम जनाब, आपकी भी सलामती हो। सर, मैं खालिद वसी पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी खालिद भाई, बात कीजिए। सर, मेरा क्या बच्चे को बपतिस्मा देना चाहिए? जी क्या बात है, दोबारा बोलिए। बच्चे को पानी का बपतिस्मा देना चाहिए जनाब, आज हमारा मौजू है, और कैसे देना चाहिए? जी आज हमारा मौजू है खालिद भाई, कायदीन की पहचान। तो ये आपका सवाल मैंने लिख लिया है। जब बपतिस्मा पर बात करेंगे तो ज़रूर हम इस पर तफसीलन बात करेंगे, चूँकि थोड़े वक्त में बात करना मुनासिब नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आज के मौजू के ताल्लुक से कोई बात करना चाहेंगे, कायदीन के ताल्लुक से? अच्छा, बहुत सारे खादिम है बस साहब जो सच्चाई बताते हैं, लेकिन लोग उनको बुरा जानते हैं। और हमारे बहुत सारे खादिम है जो अपने आप को खादिम कहते हैं, लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं बताते। बहुत से हमारे गिरजाघरों के अंदर बुत रखे हुए लोगों ने, घरों के अंदर रखे हैं, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी शुक्रिया, वही बात हम पहले भी कर रहे हैं। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो फिर मैं आज सवाल करता हूं यही जनाब मोहतरम पास्टर परवेज साहब से। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, कोई और बात करना चाहेंगे? परवेज साहब को मेरा सलाम और हमारी दुआएं आपके साथ है। खुदा को बरकत दे और आई लव यू एज टीवी एंड टीम। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर साहब जी, उन्होंने कहा झूठे जो खादिम हैं वो भी चर्चों में हैं, वो भी लीडर हैं। तो क्या कहेंगे सर? झूठ और सच की पहचान जो है वो कलाम मुकद्दस से ही है, और बड़ी खूबसूरती से कलाम मुकद्दस ने बताया कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। असल में पहचान जो है, अब लोगों को ये देखना चाहिए कि फल जो है वो, एक दफा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आज बार बार जिंदगी की बातें मेरे सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग आगे उनसे बपतिस्मा लेने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि आए शाम के बच्चों किसने जता दिया, आने वाले गजब से भागो, पस तौबा के मुआफिक फल लाओ। सर मैं चाहूंगा कि ये जो आयत आप बयान फरमा रहे हैं, चूंकि बहुत से लोग सुन रहे हैं, शायद जो दोनों ग्रोह में हैं, दोनों ग्रोह के रहनुमा सुन रहे हैं, आने वाले गजब से भागो, शायद वो जानते नहीं कि आने वाला जो वक्त है वो फैसला कुन वक्त है, खुदा की अदालत का वक्त है। शायद वो इस बात को सुनकर अपनी राह बदल लें। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वो जब कहता है आने वाले गजब से भागो, तो क्या गजब होगा, वो थोड़ा सा मुख्तसर बताइए, फिर बात आगे बढ़ा दीजिए। जी डॉक्टर दानियाल, मैं आपके क्वेश्चन को ओवर राइड नहीं करना चाहता, लेकिन इस आयत को जरूर पूरा करूंगा जो अलमसी ने कहा कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। लेकिन सवाल की तरफ आते हुए कि आपने कहा आने वाले गजब से भागो, असल में खुदा मोहब्बत ने हमेशा उस गजबे इलाही से बचने के लिए लोगों के लिए राह तैयार की, और ऐसे खादमों को और ऐसे अंबिया को भेजकर ये कहा आने वाले गजब से भागो, जिसका मतलब है कि वो सच्चा आदल मुनसिफ है। एक दिन जब दुनिया की अदालत होगी
और वो लोग जो सच्चाई के कलाम को रद्द करते और सच्चाई के कलाम की और सच्चे नबियों की बात को टाल देते हैं, जैसे आपने यिर्मयाह का जिक्र किया और उस वक्त हनन्याह भी है, लेकिन अब लोगों पर थी कि वो यिर्मयाह की सच्ची बातों की तकलीद करते या वो झूठी तसल्लियों में रहते। और आने वाला गजब जो है वो अदालत है जो रास्ती से होगी, और उस अदालत में कोई बच ना सकेगा अगर कोई तरीकाकार भी गया, चाहे वो उस्ताद होंगे झूठे या झूठे नबी होंगे या उनके पैरोकार होंगे। इसलिए उस गजब से बचने के लिए हकीकी सच्चाई को अपनाना होगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ सर, कि जो कायदीन का तरीका है पाको हिंद में मसीही, ख़ास तौर पर जो इंतखाबात होते हैं बिशप साहबान के या दीगर मसीही तंजीमों के, तो आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ और दुनिया भी वाकिफ़ है कि जो बिशप साहबान के इंतखाबात होते हैं तो क्या क्या होता है। जी, तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी रोशनी डालिए थोड़ी सी, कि जो लोग ऐसे इंतखाबात की सूरत में आते हैं जैसे कि दुनिया के इंतखाबात हैं, और बाज़ हालतों में तो यहाँ तक सुना गया, सबकी बात नहीं, बाज़ हालतों की बात कर रहा हूँ, बाज़ मौक़ों पर लोगों को ख़रीदा गया सर वोट डालने के लिए। तो ये इंतज़ामात तो ऐसे हैं, तो कलाम खुदा क्या कहता है सर इसके बारे में? डॉक्टर दानियाल, बड़ी बदकिस्मती है कि आज बदी की ताकतें, तारीकी की ताकतें और लोग इस जंगल में हवस परस्ती और दौलत के नशे में इस कदर हो गए हैं कि उन्हें इस मर्तबे को हासिल करने के लिए, अगर देखा जाए तो इंतखाब जो है, जो बुलावा जो है, वो तो खुदा की तरफ से है, और इस बुलावे को जो रिकग्नाइज करना है, तस्लीम करना है, वो लोगों का है। लेकिन अब बात ये हो गई है बदकिस्मती से, अगर हम बड़े सगीर की बात करें, पाको हिंद की बात करें, तो कई बरसों पहले ऐसे खुदा तरस बिशप साहबान आए, लेकिन वो वोट खरीद कर नहीं आए। इसीलिए हम देखते हैं उन पैरिशेस में, उन कलीसियाओं में एक बड़ी बेदारी। लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हो गया, और मैं सोचता हूं कि कौमों में, चाहे वो सियासी लीडर थे या मजहबी लीडर थे, मैं सोचता हूं मजहबी लीडरों ने भी इसी तरह से उस सारी मुल्क की सकाफत या उस सारे असर और रसूख को ले लिया और उन्होंने खुदा की बातों को, इलाही बुलावे को भी इन बातों से बदला। और आज जैसे कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, और जिस पर हमें बड़ी दिलेरी से ये कहना चाहिए, हम इन सारी बातों की नफी करते हैं, क्योंकि ये कलाम के मुताबिक खरीदना वोट और बलबोते पर किसी ताकत को हासिल करना, ये खुदा का बुलावा, ये खिदमत का इंतखाब नहीं है। सर एक कॉलर साथ हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जो इस निज़ाम में फिर मुंतखब क़यादत है, उसके बारे में क्या करें, उसका आप जवाब दीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो आप लिख लीजिए, जो मुंतखब इस वक्त क़यादत है वोट खरीद कर, उसकी पैरवी करनी चाहिए, उनको कायद मानना चाहिए या नहीं? एक कॉलर हमारे साथ हैं सर, फिर बात करते हैं। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, कौन साहिब या साहिबा बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, और टीवी की आवाज़ कम कर दें प्लीज़। जी डॉक्टर दानियाल साहब, मेरी तरफ से आपको सलाम। सलाम जनाब, आपको भी सलाम, बात कीजिए प्लीज। जी मैं नुमान बात कर रहा हूँ, और मैं आपसे आज का जो मौजू है उसकी मुनासबत से मैं सवाल करना चाहूँगा कि मैंने पिछले दिनों भी, अगर आपने भी सुनी हो ये खबर, कि मंडी बहाउलदीन में भी क्रिश्चियनों के साथ जो उनको इलाका बदर करने को कहा गया, फिर कसूर में एक आइसक्रीम वाले के साथ जो ज्यादती का उसको निशाना बनाया गया। लेकिन अब एक और वायरल हो रही है खबर कि एक चर्च में भी एक पुलिस वाले ने उसकी बेहुरमती करने की कोशिश की है, लेकिन कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मजहबी कायदीन हैं, क्या उनके जहनों में, क्या उनके पास ये खबर नहीं पहुंची होगी कि जो मसीहियों के साथ इस तरह के जुल्म बर्बियत का मुजाहरा किया जा रहा है, क्या उनके पास इस तरह के, क्या मजहबी कायदीन क्या सिर्फ यही कंसर्न रखते हैं कि हमारे चैनल्स खुल जाएं? और दूसरा, वेयर इज आवर मिनिस्टर? हमारे मिनिस्टर को भी, क्या माइनॉरिटीज के मिनिस्टर को भी नहीं क्या इस खबर का पता होगा कि हमारे क्रिश्चियंस किस हालत में
پاکستان میں رہ رہے ہیں کہ 3 اور اس طرح کے کئی واقعات سیالکوٹ میں دیکھ لیں آپ، ایک لڑکی کے ساتھ اس کو زبردستی انہوں نے اسلام قبول کروایا اور اس کا جعلی سرٹیفکیٹ بنا کے اس کو پیش کیا گیا اور اس کو زبردستی اسلام قبول کر. کیا یہ خبر ہمارے منسٹرز کو، ہمارے مذہبی قائدین تک نہیں پہنچی ہوگی؟ ہم بس کنسرن رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کر لیا اور ہم ٹی وی پہ آ جائیں، بس ہم تھوڑا سا موقف دیں اور بس. لیکن کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں کہ ہم اس پہ اپنی آواز بلند کریں؟ بہت شکریہ. میں آپ کا اوپینین جاننا چاہتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے اس نقطے کو اٹھایا ہے اور میرا جو شو ہے یہ ترجمہ کر کے بہت سی جگہوں پر بھیجا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ جو اس کو ترجمہ کر کے بھیجتے ہیں وہ ان نمائندوں کو بھی دکھائیں جو اس قوم کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت شکریہ. نعمان صاحب کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ سر میں بس اور تو کوئی بات نہیں، آپ کا شو ہی بہت پسند ہے مجھے کہ ہر ٹاپک پہ آپ بات کرتے ہیں دورہ حاضرہ کے، اور جو کرسچنوں کے لیے آپ خاص کر جو اس شو کو خدا ان بہت برکت دے، زندگی ٹی وی چینل کو بہت برکت دے کہ انہوں نے جو سچائیاں آپ کو بیان کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے، خدا ان کا ساتھ دے. بہت شکریہ جناب. سچ بات کہتے تھے، کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک دم ہے، سچائی بیان کرتے رہیں گے اس کے فضل سے. جناب محترم پاسٹر صاحب. جی ڈاکٹر دانیال، آج میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ ایک بڑے انقلاب کی طرف آپ کی نگاہیں آ گئی ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منتخب قیادت کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل، یہ میں نے سوال اٹھایا، اس کے بعد پھر یہ سوال کریں گے اور اس شو کو ہم جاری رکھیں گے آنے والے ہفتوں میں بھی. تو پہلے یہ بات بتائیے، یہ جو رشوت اور طرفداری کے ساتھ قیادت منتخب ہو کر آئی ہے، یہ بعد میں بتائیے. پہلے اس لڑکے نے ابھی یہ بات کی ہے بھائی نے کہ منڈی بہاولدین میں کیا ہوا سب واقف ہیں. اس کے علاوہ لڑکیاں ریپ ہوئی ہیں اور ایک جو آئس کریم والا ہے اس کو مارا گیا ہے قصور میں. کوئی مذہبی قائدین میں سے نہیں بولا، نہ ہی سیاسی قائدین میں سے بولا ہے، اور نہ ہی کوئی عملی قدم اٹھایا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں نعمان کو ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسی سوچ رکھنا، اور میں سوچتا ہوں کہ جب تک قوم کا درد یا ملک کا درد نہ ہو تو اس وقت تک یہ باتیں نہیں آ سکتی. یہ ہمارے قائدین کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی جگہوں پہ اپنی پوزیشن کو سکیور کر کے، اور وہ ہمیشہ ان جھوٹے نبیوں کی طرح تسلی دیتے رہے کہ بابل یا نبوکدنصر نہیں آئے گا. آج بھی ایسے لوگ جو صرف ایک وقتی طور پر جب تک ان کا دور حکومت یا جب تک ان کی یہ پوزیشن ہے وہ یہ کر رہے ہیں، ایک دن انہیں خدا کو بھی حساب دینا ہوگا اور وہ قوم کے سامنے بھی جواب دہ ہیں. اور میں یہ سوچتا ہوں انتہائی افسوس کا مقام ہے، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مسیح بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اور مسیح لوگوں کے ساتھ جو یہ سلوک ہے، یہ مکمل شہری ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. یہ زیادتی ہے، اور میں کہوں گا کہ مسیح رہنماؤں کو، کرسچن لیڈرز کو ضرور آواز اٹھانی چاہیے. اگر وہ سر شکریہ. آواز کے ساتھ عملی اقدام بھی تو ہونے چاہیے. اس کے ساتھ سر میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بات کریں، جو مسیحی قائدین انہوں نے بڑی بڑی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کی تنظیموں کے، پریکٹیکلی تو آپ کیا کہیں گے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، پھر میں سوچتا ہوں کہ آج آ کے اسی پر بات ختم ہوتی ہے. یہ ضمیر فروشی ہے، یہ غیر ذمہ داری ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اپنی دکانداری کی خاطر ایک قوم کا سودا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اگنور کیا جا رہا ہے جو ان کی پاور ہے، اور ایک دن انہیں یقیناً یہ حساب تو دینا ہوگا. ایک دن یقیناً انہیں حساب دینا ہوگا. پاسٹر پرویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. پرویز صاحب پھر جاری رکھیں گے.
जी, खुश आमदीद। हमारा मौजू है आज कायदीन की पहचान। आप ऑन एयर हैं, कौन साहिब या साहिबा बात कीजिए। वक्त हमारे पास बहुत कम है, अब 10 मिनट है, बात कीजिए जल्दी से मौजू के ताल्लुक से प्लीज। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने हमारी कॉल ली। शुक्रिया, मैं प्रोफेसर का भी बड़ा मशहूर हूँ और आपके टॉपिक के लिए जो लीडर के हिसाब से है, तो मैं थाईलैंड से बात कर रहा हूँ और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि लीडर साहबान की कितनी फुकदान है कि थाईलैंड में बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन असाइलम सीकर ऐसे हैं जो कि यहाँ पर जिंदगी और मौत की हालत में है, लेकिन किसी की भी लीडर में ये जुर्त नहीं हुई, ना सियासी में ना मजहबी लीडर में, कि वो आकर यहाँ पर देखें और हमारे क्रिश्चियन लोगों के बारे में जान सकें कि वो किन हालात में हैं। और वो अपने बड़े बड़े चोगे पहनकर तो सब बड़े बड़े सरमन देते हैं, लेकिन किसी को इतना भी नहीं है कि हमारे लोग यहाँ पर मरे होते हैं, डेड बॉडी 5-5 दिन जो हॉस्पिटल में पड़ी रहती है और कोई जनाजा तक पढ़ाने के लिए नहीं होता है। यहाँ तक मैंने बजाते खुद 5 जनाजे पढ़ाए हैं थाईलैंड में, और एक ऐसा भी जनाजा था 5 दिन डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी रही, लेकिन कोई लीडर था ही नहीं कि जो जनाजा पढ़ा सके। और हमने बैंकॉक से 700 किलोमीटर दूर जाकर डेड बॉडी को दफनाया और यहाँ तक कोई मट्टी डालने के भी नहीं था। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मजहबी रहनुमा, बड़े बड़े बिशप साहबान, बड़े बड़े डॉक्टर, आलम, स्कॉलर जो हैं, वो बड़े कॉलर जो लगाकर तो बैठते हैं और जब मजालस में बैठ कर बड़ी तकरीरें करते हैं, सियासी रहनुमा जो है वो पार्लियामेंट में बैठकर बातें करते हैं, लेकिन क्या वो ये नहीं जानते कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्होंने अपनी कौम के लिए भी कुछ करना है। तो बराए मेहरबानी मैं चाहूंगा कि पास्टर साहब से वो मजीद इस पर रोशनी डालें और उन खुदाम के हवाले से उन लीडरों के बारे में प्लीज बराए मेहरबानी वाजे कीजिए जिनकी बाबत में लिखा हुआ है कि वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते हैं। माजरत के साथ ऐसे अल्फाज मुझे कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन उन लीडर साहबानों के हमारे अंदर जो दुख है, जो दर्द है, उसको हम हमारे सामने है। इसलिए नहीं है कि हम किसी मुखालफत करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम उनके बगैर क्या है, वो हमारे लीडर हैं और उनका हक बनता है कि हमें दुख और मुसीबतों में जानना और हमारी मुश्किलात को पहचानना। बहुत शुक्रिया, आपने दर्द में ये बातें की हैं, दुख में ये बातें की हैं। अगर रहनुमाओं ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की होती तो ये बातें आज ना होती। यही वो लोग हैं, यही वो कलीसिया के अफराद हैं जिनके नाम पर करोड़ों डॉलर्स और यूरो और दीगर करेंसी में नाम लूं तो बहुत से नाम आ जाएंगे। इन्हीं के नाम पे ये पैसा उन लोगों को भेजा जाता है जिनको दुनिया ये कहती है कि ये ट्रस्टवर्दी हैं, ये कलीसिया के नुमाइंदे हैं। यही तो लीडर हैं जनाब, इनको पैसा दीजिए, इनकी मदद कीजिए, ये इनके ठेकेदार हैं। और आज मैं उन ठेकेदारों से पूछता हूं, मुझे पता है इस प्रोग्राम के बाद मुखालफतें तो बहुत सी होनी हैं और मैं ना कभी डरता था, ना डरता हूं और ना डरूंगा। यीशु के फजल से उसने हमें दिलेरी दे रखी है, उसका करम है, उसका फजल है। कोई रूहानी सुपरमैन नहीं, मैं कहता आप ही की तरह एक शख्स हूं, लेकिन उसका फजल है कि हक बात अगर ना कहेंगे तो याद रखिए तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। पास्टर जाशवा साहब बहुत शुक्रिया। पास्टर प्रोएस साहब, आप तो सीनियर हैं हमारे, कौन कब कहां से इस्लाह की जाएगी और कौन करेगा? मोहतरम बचपन से देख रहे हैं, करोड़ों डॉलर जाते हैं सर, दीगर करेंसी जाते हैं और उनको वो कहते हैं कि ये ट्रस्टवर्दी हैं। मेरी फ्रस्ट्रेशन ये है सर, मैं जब सच्चाई का बयान करता हूं वो कहते हैं इसको कॉर्नर कर दो, ये झूठ बोलता है। सच्चाई ये है जो लोगों ने आपके सामने पहुंचाई है। अगर आज भी कोई शख्स आंखें बंद कर ले, इसको झूठ साबित करने की कोशिश करे, तो वो याद रखे एक दिन यीशु के आगे खड़े होंगे और वो पूछेगा जो कुछ मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या किया है। पास्टर साहब हमारे पास 5 मिनट हैं, आपसे दरखास्त है, शो को जारी रखेंगे यहीं से, लेकिन मैं चाहूंगा 4 मिनट में आप बताइए, ये दुनिया की नजर में ट्रस्टवर्दी हैं, लोग मर रहे हैं, बच्चों के पास दूध नहीं है, बीमारों के पास दवाई नहीं है,
खानदानों के पास खाने के लिए नहीं है, लड़कियां रेप हो रही हैं, उनके मुकदमे FIR दर्ज नहीं होती है, वहां पर मसीही नौजवान को जला दिया गया है, कोई रहनुमा नहीं पहुंचा। अभी हाल ही में पिछले दिनों एक मसीही नौजवान को उसको लटकाकर मारा गया है, कोई नहीं बोला। उनके नाम पर पैसे खाना जायज है, उनके लिए अमली कदम उठाना, डर और खौफ में चुप रहना, क्या यही की आदत है सर? आप बताइए, आप एक हमारे सीनियर रहनुमा हैं। जी डॉक्टर दानियाल, आज मैं ये सोचता हूं कि एक इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे कॉलर्स ने भी अपने दुख और अपनी आहों को और अपने गिले और अपने शिकवे को, जो बिल्कुल दुरुस्त और जायज है, और मैं ये सोचता हूं कि आप जो कह रहे हो, हर मसीह का और हर शख्स का जिनके ये कायद बने हुए हैं, उनका ये हक पहुंचता है कि वो इनसे पूछें, काश के इनसे हिसाब लेने वाला कोई अकाउंटेबिलिटी इनकी होती। और आज आपके इस प्रोग्राम के वसातत से मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि वो लोग जो इनको ग्रांट करते हैं, काश के उन तक आवाज हम पहुंचा सके कि ये सारा गोरख धंधा जो इतनी देर से चल रहा है, इसके लिए जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक शफाफियत नहीं होगी, और ये फंड्स जो हैं वो रोके जाएं और इनके जमीरों को झंझोड़ा जाए। और आज मैं ये कहूंगा, पास्टर साहब आपके पास सिर्फ 50 सेकंड है और फिर मुझे इख्तिताम करना है, और मैं इन 50 सेकंड्स में यही कहूंगा, डॉक्टर दानियाल, काश के इनके जमीरों को झंझोड़ने के लिए हमारी आवाज बुलंद होती रहे। और मेरा ये यकीन है, अगर ये आवाज इनको एक दिन जरूर होश में लाएगी, ताकि वो जान सकें कि कोई उठ खड़ा हुआ है जो सच्चाई को बयान करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। यहीं से हम जारी रखेंगे कायदीन की पहचान। बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज साहब, कॉलर्स के लिए शुक्रिया, मेरी टीम जो मेरे साथ है उनके लिए शुक्रिया, मेरे लिए जो दुआएं करते हैं उनके लिए शुक्रिया, जो मशवराजात देते हैं उनके लिए शुक्रिया, जो मुखालफीन और हासदीन हैं आपके लिए भी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आखिर में एक शेर आपकी नजर करता हूं। ये जो लोग हैं जो कायदीन होने का दावा करते हैं, तमाम लोग पहले इस बात को देख लिया करें, सोच लिया करें। किसी शायर ने कहा था, आया था घर संवारने एहसान कर गया, आया था घर संवारने एहसान कर गया, बर्बादियों का और भी सामान कर गया। ऐसे रहनुमा जो बर्बादियों की तरफ लेकर जा रहे हैं, कलाम खुदा की रोशनी में आने वाले दिनों में सीखेंगे किस तरह से हम हेल्दी कायदीन की बात, सेहतमंदाना क़यादत की बात करेंगे, सीखेंगे खुदा के कलाम में से पहचान की बातें, निशानियां भी, और बरकत पाएंगे। और दुआ यही है, किसी भी लम्हे कोई भी शख्स बदल सकता है, वो मैं हूं या आप हैं। अगर कोई कायदीन की वो तरतीब जो खुदा ने दी है उस पर पूरा नहीं उतरता, तो आइए वापस लौटें खुदा के कलाम की तरफ, बाबरकत हो जाएं और बाबरकत बनाते चले जाएं। बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपसे बात होगी। आपका मेजबान दानियाल।